आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुस्लिम सम्मेलन में सीएम के आश्वासन पर कर्नाटक विधानसभा में हंगामा। तेलंगाना के मनोनीत मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। महाराष्ट्र विधान भवन में एनसीपी कार्यालय हमारा है, अजित गुट के अलग होने के बीच बोले शरद पवार के करीबी देशमुख। बीजेपी नेता को काउंटिंग से 2 दिन पहले पता था मध्य प्रदेश का रिजल्ट, दिग्विजय सिंह का नया दावा। मिचोंग साइक्लोन ने तमिलनाडु में मचाई तबाही, सीएम स्टालिन ने केंद्र से मांगी 5,000। अब समाचार विस्तार से। बसवा कल्याण के तहसील कार्यालय में जनता दरबार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बीदर से डीसी गोविंद रेड्डी, सीईओ शिल्पा एम, एसपी चन्नो बसवना उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में बसवा कल्याण के सरकारी अधिकारी उपस्थित थे। यह कार्यक्रम बसवा कल्याण के लोगों को क्या समस्या है, कौन से गांव में क्या कमी है, ये जानने के लिए किया गया था। इसमें सभी गांव के लोग आकर अपनी अपनी समस्याएं बताई। कार्यक्रम होने के बाद डीसी गोविंद रेड्डी और एसपी चन्नो बसवना ने मीडिया से बात की। बसवा कल्याण से केपी न्यूज के लिए संवाददाता शमीर शेख की रिपोर्ट। अभियान ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಏನಂದ್ರೆ 295 ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 200 ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ಕಳೆದ 5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 95 ಅಂದ್ರೆ 50% ಏನಂದ್ರೆ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದೇ ಇರೋರಿಗೆ ನಾವು ಫೈನ್ ಬದಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಏನಂತಂದರೆ 10,000ದಷ್ಟು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಏನಂತಂದರೆ ಜನ ದಂಡ ಕಟ್ಟೋ ಬದಲಿಗೆ ಏನಂದರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಏನಂದರೆ ದಂಡ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೀಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರೋದೇನಂತಂದರೆ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು, ಸಾವು ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಡೇಟಾ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ 30% ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮದು ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಾನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನಂದರೆ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಲಿಸೋಣ, ನಾವು ಪಾಲಿಸೋಣ, ನೀವು ಪಾಲಿಸೋಣ, ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಣ, ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಜೀವಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಪ್ತರಿಗೆ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಏನಂತಾರೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಡಿ, ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಬೈಸಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೈಕ್ಗಳು ಏನಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಬಳಸಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆವಿ ದಂಡ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಣನ ದಂಡದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣನ ನಿಮಗೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಅದ್ರ ಬದಲಿ ಬೈಸಿಕಲ್ ಬಳಸಿ ಅಂತ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ DC ಸರ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಏನಂದರೆ ಬೈಸಿಕಲ್ನ ಬಳಸಿ ಮನೆಯಿಂದ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಬೈಸಿಕಲ್ ಬಳಸಿ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಬೈಸಿಕಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಏನಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಾನೂನಲ್ಲಿದೆ ಬೈಕ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಾಗ ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅವರೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಂತಾರೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಏನಂದರೆ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಬಸ್ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಈಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ಏನಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಒ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಲೋಕಲ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಭಾಳಷ್ಟು ಇರ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇದೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿ 15 ದಿವಸಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಾವು ತಾಲೂಕು ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಪ್ರತಿ 15 ದಿವಸಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ತಾಲೂಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಲೋಕಲ್ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಜನರು ಯಾರಾದರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರು ಆಗಲಿ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಕೊಡೋರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ತಪ್ಪಿಂದ ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ತೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಏನಾರು ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಕೆಲಸ ಏನಾರು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂಬರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಅಥವಾ ಅದು ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಂಗಿತ್ತಂದರೆ ಕೋರ್ಟ್ಗಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಈಗ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಅನುದಾನಕ್ಕಾಗಿ
ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಮನವಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೀವಿ. ಇದು ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಜನತಾ ದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಸೊ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ 15 ದಿವಸಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದಿವಸ ತಾಲೂಕು ಹೆಡ್ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ಜನರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ತಾಲೂಕಿಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಜನರ ಸ್ಪಂದನೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆ ಸೊ 11:30ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆ ತನಕ ಸೊ ಜನರು ಅವರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಸೊ ಆ ಅಹವಾಲುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಜನರದ್ದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಅವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ನಡೀತೈತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಸಹ ಅರಿವಿಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತವ ಅವಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತವೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನಸ್ಪಂದನ ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. एक मुस्लिम सम्मेलन में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के इस आश्वासन पर ही वह अल्पसंख्यकों के लिए बजट को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए करना चाहते हैं। विधानसभा में हंगामा मच गया और भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। 4 दिसंबर को हुबली में औलाद एक गौ से आजम सम्मेलन को संबोधित करते हुए सिद्धरामैया ने कहा, मैं कहना चाहता हूं कि इस साल हमने अल्पसंख्यक विभाग को 4,000 करोड़ रुपए दिए हैं। हम इसे हर साल बढ़ाने के लिए काम करेंगे। बीजेपी विधायक वी सुनील कुमार ने इसे विधानसभा में उठाया। परंपरा के अनुसार जब सदन चल रहा हो तब बाहर कोई नई घोषणा नहीं की जा सकती। सीएम ने ऐलान किया है कि अल्पसंख्यकों को 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सदस्य होने के नाते हमें जानने का अधिकार है। सत्ता पक्ष ने सिद्धरामैया का बचाव किया, जो सदन में मौजूद नहीं थे। क्या गलत है? कोई भी वित्तीय निर्णय वैसे भी मंजूरी के लिए इस सदन में आएगा। आईटी-बीटी मंत्री प्रियंक खड़गे ने कहा। तेलंगाना के मनोनीत मुख्यमंत्री और सीएलपी नेता रेवंत रेड्डी ने आज सुबह दिल्ली में एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। रेवंत ने सीएलपी नेता बनाए जाने के लिए दोनों को धन्यवाद दिया। उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी मुलाकात की और उन्हें शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही कैबिनेट गठन के मुद्दे पर भी इन नेताओं से बात की। जहीराबाद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के चुनाव हारने वाले उम्मीदवार डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वह इस धरती के निवासी है और हारने के बाद वह विकाराबाद या कहीं और नहीं जाने वाले हैं। वे उसी निर्वाचन क्षेत्र में रहकर सार्वजनिक सेवाएं देंगे। स्थानीय निकाय और संसदीय चुनाव में कांग्रेस को मजबूत करेंगे। वह जहीराबाद शहर के उन इलाकों में भी विकास कार्य कराएंगे जहां लोगों ने उन्हें शर्मिंदा करने के लिए वोट नहीं दिया था। उन्होंने विधायक माणिक राव की आलोचना करते हुए कहा कि जब उनकी पार्टी सत्ता में थी वो माणिक राव ने कुछ नहीं किया, अब क्या करेंगे। डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और शुभ चिंतकों से कहा कि वे निराश न हो, क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और राज्य का अच्छा विकास होगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुगली रामुलु, उज्जवल रेड्डी, मोहम्मद शाकिर उपाध्यक्ष, नशीन कोहिर, ख्वाजा मियां और अन्य कांग्रेस नेता उपस्थित थे। कैमरामैन नियामतुल्ला के साथ जहीराबाद से रिजवान की रिपोर्ट। మిత్రులకు అందరికీ నమస్కారం। క్షమించాలి, మిమ్మల్ని 1-2 గంటలు కూర్చోబెట్టినాం। ఆ పబ్లిక్ మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి నాయకులందరూ కూడా మాట్లాడుతున్నందుకు అది కొంచెం ఆలస్యమైంది। ఐఎమ్ వెరీ సారీ। రెండో ముచ్చట ఏంటంటే ఎన్నికల్లో జయాపజయాలు సామాన్యమే। కాకపోతే ఏంటంటే ఈ జహీరాబాద్లో ఉన్న బంగ్లాలో దురదృష్టవంతులు అనుకుంటున్నాను నేను। ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ దీనికంటే మొదలు, ఎందుకంటే మీ అందరి ద్వారా విన్నాం, పబ్లిక్ ద్వారా విన్నాం। అయితే మనకు అభివృద్ధే ముఖ్యం అనుకున్నాం। రెండోది బై ద బై పబ్లిక్ కూడా చాలామంది మీరందరూ కూడా అనాలిసిస్ చేశారు, మనం డెఫినెట్గా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలుస్తున్నదని చెప్పేసి। గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అంతా కూడా టోటల్గా మనకు 6 గ్యారంటీ స్కీమ్లు ఏదైతే సోనియా గాంధీ పెట్టిందో వీటి మీద కూడా చాలా విశ్వాసం వచ్చింది। కాబట్టి దానికి తగ్గట్టుగానే నేను పనిచేయాలని చెప్పేసి అసలు రిజల్ట్ పోక మొదలు ఇక్కడ కలిసిన వాళ్ళతో అందరూ చెప్పిన, నేను 4వ తారీఖు రోజు
టోటల్గా ఈ యొక్క రోడ్ల సమస్య ఫస్ట్ ఆఫీసర్లను పిలిచి దాన్ని ఎస్టిమేషన్ చేయించేసి 15 రోజులలో ఈ యొక్క రోడ్లన్నీ కూడా స్టార్ట్ చేపిద్దామనే ఆలోచనలో ఉన్నా, కానీ అది వదిలేదేం లేదు. తర్వాత రెండవది, దీనికంటే ముందు మీడియా మిత్రులకు నేను ఫస్ట్ రోజు రాజనహల్లిలో ఏదైతే ప్రామిస్ చేసినో అది టోటల్గా మీరు ఎమ్మెల్యే కాలేదు కాబట్టి అవుతుందో కాదో అనుకోవద్దు. 100% మీకు నేను మాట ఇచ్చిన మాట నేను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తా. కాకపోతే రెండోది ఏంటంటే మా హడావిడి వల్ల మేము తిరగడము మా దీంట్లో వల్ల మీ ప్రెస్సులతో చాలా వరకు కొంత మాట్లాడలేకపోయినాం. దానికి కూడా మీరు అందరి దగ్గర మేము క్షమించాలని చెప్పేసి కోరుతున్నా. కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ ఎన్నికల్లో ఏదైతే महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान शरद पवार गुट के राकांपा नेता अनिल देशमुख ने बुधवार को कहा कि नागपुर में विधान भवन में राकांपा कार्यालय उनके गुट का है, न कि अजीत पवार गुट का। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अजीत पवार गुट के नेताओं को निशाने पर लेते हुए विधानसभा के स्पीकर से उनके लिए अलग कार्यालय उपलब्ध कराने की मांग की है। इस साल 2 जुलाई को राकांपा 2 गुटों में बंट गई थी, जिसमें अजीत पवार के साथ अन्य 8 विधायक राज्य सरकार में शामिल हो गए थे। पार्टी के इस बंटवारे के बाद ही पार्टी के नाम और चिन्ह को लेकर दोनों गुटों के बीच टकराव भी हुआ। विधानसभा में जब विधान भवन में पार्टी कार्यालय को लेकर सवाल किया गया, तब अजीत पवार गुट के नेता धर्मराव बाबा आत्राम ने दावा किया कि पार्टी कार्यालय उनके गुट का है। इस पर शरद पवार गुट के नेता अनिल देशमुख ने पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी कार्यालय उनका ही रहेगा। पार्टी के कुछ सदस्य उन्हें छोड़कर चले गए, लेकिन इसके बावजूद पार्टी कार्यालय उनका ही रहेगा। चक्रवात के प्रभाव से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी सहित अन्य तटीय राज्यों में हुई भारी बारिश और बारिश जनित कारणों से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदनाएं जताई है। पीएम मोदी ने बुधवार 6 दिसंबर सुबह ट्वीट कर इस घटना पर दुख जाहिर किया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के अधिकारी प्रभावित लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं और हालात सामान्य होने तक काम जारी रहेंगे। पीएम ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा, मेरी संवेदनाएं उन लोगों के परिवारों के साथ है जिन्होंने चक्रवात मीचों के कारण अपने प्रियजनों को खो दिया है। खासकर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में इस चक्रवात में घायल या प्रभावित लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना कर रहा हूं। अधिकारी प्रभावित लोगों की सहायता के लिए जमीन पर अथक प्रयास कर रहे हैं और स्थिति पूरी तरह सामान्य होने तक अपना काम जारी रखेंगे। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। हाल ही में आए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजों ने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। खासतौर पर मध्य प्रदेश में राज्य में कांग्रेस नेता भारतीय जनता पार्टी की जीत के पीछे ईवीएम का हाथ बता रहे हैं और तरह तरह के सवाल खड़े करने लगे हैं। अब ताजा घटनाक्रम में दिग्विजय सिंह ने नया सी गुफा छेड़ दिया है। बीजेपी की चुनावी जीत के पीछे ईवीएम हैकिंग का आरोप लगाने के बाद दिग्विजय सिंह का कहना है कि बीजेपी नेता को चुनाव के नतीजों के बारे में मतगणना के 2 दिन पहले ही पता था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए उन्होंने ये दावा किया है। कांग्रेस सांसद ने 2 स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, एक फेसबुक से और दूसरा इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के रिजल्ट वाले पेज का है।
जिसमें उन्होंने लिखा है, इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। भाजपा पदाधिकारी लिखते हैं कि खाचरौद विधानसभा सीट पर प्रत्येक उम्मीदवार को कितने वोट मिले और अंतर कितना है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पोस्ट मतगणना से 2 दिन पहले 1 दिसंबर के दिन की गई थी। चक्रवाती तूफान मीचोंग से हुए नुकसान को लेकर तमिलनाडु सरकार ने केंद्र से 5,060 करोड़ रुपए की अंतिम राहत की मांग की है। राज्य सरकार ने बुधवार 6 दिसंबर को कहा कि कुल नुकसान का आकलन किया जा रहा है, जिस पर रिपोर्ट तैयार कर अतिरिक्त राशि की केंद्र से मांग की जाएगी। राज्य सरकार ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस संबंध में पत्र लिख दिया गया है। तमिलनाडु सरकार ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि कुल नुकसान का एक आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण किया जा रहा है। एक विस्तृत रिपोर्ट बाद में तैयार की जाएगी और अतिरिक्त धनराशि की मांग की जाएगी। इससे कहा गया है कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 5,060 करोड़ रुपए की अंतरिम राहत देने की मांग की है। यह पत्र द्रविड़ मुन्नेत्र काशगम डीएमके सांसद टी.आर. बालू द्वारा प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जल बोर्ड का सीएजी ऑडिट कराने के आदेश दिए हैं। केजरीवाल सरकार दिल्ली जल बोर्ड के पिछले 15 साल का सीएजी ऑडिट कराएगी। दिल्ली सरकार ने ये फैसला जब बोर्ड में अनियमितताओं को लेकर उठ रहे सवालों के बीच लिया है। दिल्ली जल बोर्ड ने पिछले दिनों दिल्ली सरकार के वित्त विभाग से अपना पैसा मांगा था। वित्त विभाग ने वह पैसा जारी नहीं किया था और यह बात निकल कर आ रही थी कि जल बोर्ड ने इससे पहले जारी किए गए पैसे का हिसाब किताब या यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। दूसरी तरफ बिजली दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले का आरोप लगा रही थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संसद का शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 बिल, जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 पर जवाब दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि कांग्रेस ने कश्मीर पंडितों के लिए कुछ नहीं किया है, जबकि मौजूदा मोदी सरकार जो कर रही है इतिहास उसे हमेशा याद रखेगा। अमित शाह ने कहा कि मैं यहाँ जो विधेयक लेकर आया हूँ वह उन लोगों को न्याय दिलाने और उनका अधिकार दिलाने से संबंधित है जिनके खिलाफ अन्याय हुआ, जिनका अपमान हुआ और जिनकी अपेक्षा की गई। किसी भी समाज में जो लोग वंचित है उन्हें आगे लाना चाहिए। यही भारत के संविधान की मूल भावना है। दरअसल अमित शाह ने उन्हें इस तरह से आगे लाना होगा जिससे उनका सम्मान कम न हो। अधिकार देना और सम्मान पूर्वक अधिकार देना दोनों में बहुत अंतर है, इसलिए इसका नाम कमजोर और वंचित वर्ग की बजाय अन्य पिछड़ा वर्ग किया जाना जरूरी है। लोकसभा में अमित शाह के 10 बड़े ऐलान क्या है। जनपद मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के डीआईजी ऑफिस के पास नागरिक सुरक्षा कोर की ओर से स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस में सभी सिविल डिफेंस के वार्डनों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह, अपर जिलाधिकारी ज्योति सिंह उपस्थित रही। इसके साथ ही डिप्टी चीफ वार्डन पंकज सक्सेना, चीफ वार्डन नजमुल इस्लाम, उप निबंधक जयरात तोमर आदि लोग उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम में दर्जनों सिविल डिफेंस वार्डन उपस्थित रहे। इसके साथ ही मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी ज्योति सिंह द्वारा सभी वार्डनों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुरादाबाद से केपी न्यूज के लिए आलम वारसी की रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार गुप्ता, प्रभारी डिविजनल वार्डन कोतवाली। अच्छा, आज एक प्रोग्राम हुआ है सिविल डिफेंस की तरफ। आज हमारे यहाँ जो प्रोग्राम हुआ वो सिविल डिफेंस स्थापना दिवस का हुआ था, जो प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या क्या रखा गया है इस पर? किसी को प्रमाण पत्र भी बांटे गए हैं आज? मुख्य अतिथि जिलाधिकारी महोदय आने थे, लेकिन वो बिजी होने के कारण अपर जिलाधिकारी नगर महोदय हमारी मुख्य अतिथि रही और उन्होंने ही पुरस्कार वितरण किया। कितने लोगों को प्रमाण पत्र दिए गए होंगे? करीब 70 लोगों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए थे। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुभते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। लोकसभा में चर्चा के दौरान नेताओं के बीच आपसी बहस तो रोज की बात है। हालांकि संसद के चालू शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार 5 दिसंबर को संसद में बहुजन समाज पार्टी बीएसपी के सांसद श्याम सुंदर यादव कुछ ऐसा बोल गए कि उन्हें बीच में ही रोककर अध्यक्ष ओम बिरला ने चुप करा दिया और बैठने को कहा। दरअसल यादव अपने संसदीय क्षेत्र जौनपुर में सड़क उद्घाटन को लेकर एक समस्या के बारे में अपनी बात रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अध्यक्ष से इजाजत मांगी थी। जैसे ही उनकी बारी आई और उन्होंने बोलना शुरू किया तो मुख्य बात करने के बजाय ईवीएम हैकिंग की बात करने लगे, जिस पर अध्यक्ष ओम बिरला नाराज हो गए। उन्होंने सांसद को फटकार लगाते हुए कहा कि सदन में इस तरह की बातें नहीं की जानी चाहिए। मिजोरम का चुनाव जीतने वाली रेडियो जॉकी बेरिल वन्यही असांगी राज्य की सबसे कम उम्र की विधायक बन गई है। जोरम पीपुल्स मूवमेंट ZPM से जुड़ी 32 साल की यह रेडियो जॉकी काफी लोकप्रिय है। इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीरें खूब लाइक बटोरती रही है, जहां लोग उनकी खूबसूरती की तारीफ के कसीदे पढ़ते नहीं थकते। मिजोरम के विधानसभा चुनाव में उतरी नई नवेली पार्टी ZPM ने 40 में से 27 सीटें जीतकर सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट MNF को सरकार से बेदखल कर दिया। मुस्लिम सम्मेलन में सीएम के आश्वासन पर कर्नाटक विधानसभा में हंगामा। तेलंगाना के मनोनीत मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से की मुलाकात। महाराष्ट्र विधान भवन में एनसीपी कार्यालय हमारा है। अजित गुट के अलग होने के बीच बोले शरद पवार के करीबी देशमुख। बीजेपी नेता को काउंटिंग से 2 दिन पहले पता था मध्य प्रदेश का रिजल्ट। दिग्विजय सिंह का नया दावा। बीचोंग साइक्लोन ने तमिलनाडु में मचाई तबाही। सीएम स्टालिन ने केंद्र से मांगी 5060 करोड़ रुपए की मदद। जम्मू कश्मीर पर अब 370 से आगे निकली मोदी सरकार। लोकसभा में अमित शाह के 10 बड़े ऐलान। केपी न्यूज में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।